We have a module in between them, IAM. But for now, let's get started with this particular module which we have, which is known as AWS EC2. EC2 stands for Elastic Cloud Compute, right? It is the solution. So यहाँ पर आप बहुत कुछ पढ़ने वाले हो. क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पर? We are going to study that what exactly AWS EC2 is. ठीक है? AWS EC2 क्या है? क्या उसके benefits हैं? क्या functionalities हैं? ठीक है? What are the different purchasing options which are available for us? ठीक है? You talk about the AMIs, Amazon Machine Images. We'll be talking about the different type of instances. We'll talk about different kind of operations which are there on AWS EC2, related to reboot, related to stop, related to terminate, related to resize. We'll be talking about Elastic IP, what exactly Elastic IP is. We'll be talking about EC2 billings, pricings, and then we'll do a hands-on lab practical of it. ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़नी है हमें EC2 के बारे में. काफी कुछ हम लोग कंसोल के ऊपर भी कवर अप करेंगे जब मैं आपको कंसोल या ब्राउजर पे लेके जाऊंगा, एंड विल डू द रिसोर्स क्रिएशन. Now, as you can see, what exactly EC2 is? It says it's a cloud compute, right? It's a compute cloud solution which provides you a scalable, in a very simple term, it provides you a scalable computing capacity in Amazon Web Service. Okay, so what exactly that is? Computing capacity का मतलब क्या है? We are talking about CPU RAM, right? We are talking specifically about this, right? CPU RAM, right? Which needs to be allocated to your system. ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि क्लाउड के ऊपर ओवर द इंटरनेट वी विल बी गेटिंग द कंप्यूटिंग पावर, एंड इन अ वेरी सिंपल टर्म द मीनिंग ऑफ कंप्यूटिंग पावर इज दैट यू आर लुकिंग आउट फॉर CPUs and the RAMs in there. Okay, we are talking about the CPUs and RAMs in there. So this is what an EC2 is. It is a cloud computing solution responsible for offering us the computing power. Then it says it provides you with a complete control of your computer resources and let you run on Amazon proven computing environment. Again, a very good explanation of what exactly this is and how it's supposed to run and operate. You talk about a situation where you're looking out for a complete solution, okay, where you're looking out for a complete solution which is managed by someone. ठीक है, अब जैसे टेक एन एग्जांपल, अगर आपको कंप्यूटिंग पावर चाहिए तो अगर एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो इफ यू नीड अ कंप्यूटिंग पावर यू विल बी लुकिंग आउट फॉर CPUs एंड द रैम्स एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स. ठीक है, आप बेसिकली एक सर्वर परचेज करेंगे, सर्वर के अंदर ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस आप लगाओगे, ये सारा सेटअप आप करोगे एंड आपको कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेंगी, तभी आपको ये रिसोर्स एलोकेट होगा, मिलेगा. ओके okay? Right? Then you talk about Amazon EC2 reduces the time required to obtain and boot new server instances to minute. ठीक है, अब एक एग्जांपल लीजिए. टेक एन एग्जांपल, मुझे अपनी कंपनी के अंदर एक सर्वर तैयार करना है. ठीक है, आई वांट टू क्रिएट अ सर्वर इनसाइड माय बॉक्स, ओके, इनसाइड माय ऑर्गेनाइजेशन. जनरली आप मार्केट में जाएंगे, सर्वर को प्रोक्योर करेंगे, लगाएंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह देंगे, इंटरनेट वगैरह देंगे, नेटवर्क वगैरह देंगे, और फिर OS वगैरह इंस्टॉल करोगे. OS इंस्टॉल करने के बाद आप अपनी कॉन्फ़िगरेशंस रन करोगे, चलाओगे. ठीक है, ये सारा कुछ आप करोगे. अब ये काफी टाइम देता है. मतलब एक OS इंस्टॉलेशन की ही बात कर लें तो एक OS एटलीस्ट आपकी मशीन, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होने में आपकी मशीन में कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे. मतलब अगर आप बहुत लेमन लैंग्वेज में बात करो और बहुत अच्छी SSD हार्ड ड्राइव या NVMe हार्ड ड्राइव की बात करेंगे तो आपको 10 मिनट तो लगने की. दैट्स समथिंग व्हिच यू विल हैव. And then it says Amazon EC2 changes the economy of computing by allowing you to pay only the capacity that you can actually use. तो एक आपको ये भी कह रहा है कि बॉस एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, हम एक सॉल्यूशन की भी बात कर रहे हैं कि हमें पहले से ही हार्डवेयर प्रोक्योर करने की जरूरत नहीं है या पहले से ही इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है. वी आर लुकिंग आउट फॉर अ सॉल्यूशन जहां पर एट द एंड ऑफ द डे मुझे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मुझे बस एक सेकंड दीजिए.
Sorry, there was some audio issue at my end. Sorry, I was late. Yes, so you're talking about this. An EC2 changes the economy of computing, right? So obviously, procuring a new server and provisioning it inside the infrastructure will take a toll on your pocket. ठीक है, आप पैसे वगैरह इन्वेस्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, वो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है, आप जितना यूज करोगे उतना आपको पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरा सर्वर 24 घंटे चलाने की जरूरत भी नहीं है। आप जितना यूज करना चाहते हैं, जो भी आप यूज करेंगे, उसी हिसाब से आपको पैसे भी पे करने पड़ेंगे। So these are all the benefits of what you call having or using an EC2 solution. अगर आप EC2 solution यूज कर रहे हैं तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। Then moving ahead to the next one, you're talking about the other things, right? ये कुछ अच्छे benefits हैं जिनके ऊपर आप बात कर रहे हो। वेब स्केल कंप्यूटिंग है। वेब स्केल कंप्यूटिंग का मतलब क्या है कि depending upon your requirement, depending upon your configurations, ठीक है, depending upon your load or your workload, in that simple terms, you can scale up the solution. ठीक है, मैं अभी शुरुआत में एक एग्जांपल दे रहा हूँ। टेक एन एग्जांपल, मैं अभी एक सिस्टम के ऊपर अपना वर्कलोड चला रहा हूँ जिसमें लेट्स सपोज 8 GB रैम है और 4 CPU कोर है, एंड धीरे धीरे अगर उस पर लोड ज्यादा आता जा रहा है तो मैं उसे इंक्रीज भी कर सकता हूँ डायनेमिकली, एंड दैट्स द बेनिफिट, राइट? सो यू आर टॉकिंग अबाउट वेब स्केल कंप्यूटिंग। ठीक है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोड को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। फ्लेक्सिबल सर्विसेज हैं, जो यूज करनी है वो यूज कीजिए, जो यू नहीं यूज करनी है there is no need to use them. Reliability तो है ही है, AWS पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायबल सॉल्यूशन के थ्रू देता है। अगर आपने पिछले वीक की रिकॉर्डिंग देखी होंगी तो आपको पता चला होगा कि हम इसके अंदर इजी वगैरह बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इजी टू यूज है, it is pretty easy, right? Anybody who is complete naive in the computing can also do this thing, right? Controlled है, it can be integrated with other solution as well. We will be learning EC2 being integrated with a lot of different solutions. Secure है and comparatively काफी inexpensive है if you're talking about deploying the same setup in the product, right? अगर आप अपने इंफ्रा के ऊपर वो सेटअप रन कर रहे हैं तो उस इंफ्रा के comparatively AWS के ऊपर सेम सेटअप चलाने का कॉस्ट आपको बहुत कम लगेगा। It would be very inexpensive, right? So that is what it is. You're talking about all these things, all these functionalities, all these features of EC2. Then you talk about EC2 features, right? हम EC2 features की बात कर रहे हैं। कौन कौन सी चीजें हैं जो आप EC2 में यूज कर सकते हो, और ये सारी चीजें हम लोगों ने एक एक करके पढ़नी है। We will be talking about the AMIs, we'll be talking about the instance type, we'll be talking about key pairs, instance store। ये सारी चीजें मैं आपको GUI के अंदर दिखाऊंगा। ग्राफिकल जब हम इस कंसोल को ओपन करेंगे तो we'll talk about it, ठीक है? Now the next option which is available for us is EC2 purchasing option, right? EC2 के परचेजिंग ऑप्शंस क्या है, मतलब आप AWS से EC2 की सॉल्यूशन को किस तरीके से खरीद सकते हैं। ओके, सो यू टॉक अबाउट ऑन डिमांड इंस्टेंसेस। ऑन डिमांड इंस्टेंसेस का मतलब क्या होता है? इट्स अ पे एज यू गो मॉडल। आपको कोई प्रायर कमिटमेंट नहीं करनी होती AWS से, और AWS भी आपको कोई प्रायर कमिटमेंट नहीं देता है। इट्स जस्ट दैट whenever you want to use this service, you can go log in and start using it. Right? जब आपको सर्विस चाहिए आप जाएंगे, कंसोल पे लॉगिन होंगे और जाके सर्विसेज को यूज करना चालू करेंगे, and you will be charged with the usual fees, whatever the usual fees you have, ठीक है, you will be charged with that. Any questions? मतलब सर ये AWS के जितनी भी सर्विसेज होती हैं तो वो ये EC2 मॉडल के अंडर ही लाई करती है, करेक्ट? नहीं, EC2 मॉडल क्या होता है, मतलब क्या समझते हैं EC2 मॉडल से आप? EC2 आपने ये बताया ना कि जो भी सर्विसेज है वो इसी के थ्रू, मतलब इसी EC2 के थ्रू ही हमारे को प्रोवाइड की जाएगी एक एंड यूजर को। नहीं, EC2 से सिर्फ आपको कंप्यूटिंग सर्विस मिलेगी ना सर। कंप्यूटिंग का मतलब है CPU रैम, स्टोरेज क्यों मिलेगा इसमें, नेटवर्किंग क्यों मिलेगी आपको? ओके, सिर्फ CPU एंड रैम। हाँ, मतलब आप बेसिकली कंप्यूटिंग पावर देख रहे हो ना, CPU रैम स्टोरेज का लोकेशन का उसमें अंदर जो रहेगा
ठीक है, मतलब एक कंप्यूटर दे रहा है आपको, मतलब AWS आपको सिंपल एक मशीन दे रहा है जो आप यूज कर सकते हो। ओके ओके ओके, गॉट इट। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन। ऑन डिमांड का मतलब क्या है कि जब आप इसे यूज करना चाहेंगे तब आपको वो चीज मिलेगी, तब वो आपको रन करेगी। सेकेंड चीज विच इज अवेलेबल फॉर अस इज रिजर्व इंस्टेंसेस। ठीक है, रिजर्व इंस्टेंसेस का मतलब क्या होता है, जब आपको चीज चाहिए, ठीक है, उसके लिए आप AWS से लीज ले सकते हो। AWS से लीज लेने का मतलब क्या है कि आप AWS को बोलोगे कि नहीं यार, आई एम लुकिंग आउट फॉर अ सॉल्यूशन जो मुझे 3 साल के लिए चलाना है, या 6 महीने के लिए चलाना है, या साल भर के लिए चलाना है, या 5 साल के लिए चलाना है। मतलब आप सिंपली उनको एक कंडीशन बताओगे कि बॉस, एट द एंड ऑफ द डे आई एम लुकिंग आउट फॉर अ सिचुएशन वेयर आई एम लुकिंग आउट फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ठीक है, मेरी कंपनी है, मेरे को 3 साल के लिए प्रोजेक्ट मिला हुआ है, और उस 3 साल को प्रोजेक्ट को चलाने के लिए मैं बेसिकली AWS को यूज करना चाहता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, आप उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। ठीक है, आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो कि सर गिव मी ऑन द लीज। तो अगर आप किसी चीज को लीज पे लेते हो, ठीक है, तो आप पेमेंट का ऑप्शन भी होता है, मतलब एक कमिटमेंट है कि मैं यार इतने साल के लिए यूज करूंगा। जब आप एक कमिटमेंट AWS को दे रहे हो तो AWS भी आपको कुछ बेनिफिट देता है। क्या बेनिफिट होता है, वो आपको डिस्काउंट दे देता है प्राइस में। ठीक है, अब एक बहुत सिंपल सी चीज सोच के देखो, मतलब ये दिस इज प्लेन सिंपल बिजनेस मॉडल, राइट। अगर आप किसी शॉप पे जाते हो और आप वहां पर कोई वन टाइम सामान खरीदते हो, तो हो सकता है कि कस्टमर जो शॉपकीपर है वो आपको डिस्काउंट ना दे, बट आप उसको ये कमिटमेंट दो कि यार मैं अगले 12 महीने के लिए, अगले 36 महीने के लिए आपसे ये सामान हर महीने खरीदूंगा। ठीक है, तो बताओ, तो वो आपको ऑब्वियसली डिस्काउंट दे सकता है। ठीक है, वो ऑब्वियसली आपको डिस्काउंट दे सकता है, एंड दैट इज व्हाट द रिजर्व इंस्टेंस इज ऑल अबाउट। सो यू नीड टू मेक एन अपफ्रंट कमिटमेंट टू AWS दैट दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज दी सर्विसेज फॉर। तो आप एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है, जिसमें आप बताते हो कि आई विल बी यूजिंग दिस सर्विसेज फॉर दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ अ टाइम, एंड व्हेन यू मेक अ कमिटमेंट देन ऑब्वियसली AWS आपको डिस्काउंट वगैरह देता है या बेनिफिट वगैरह देता है। देन वी हैव व्हाट यू कॉल दी स्पॉट इंस्टेंसेस। स्पॉट इंस्टेंसेस में क्या है, स्पॉट इंस्टेंसेस में AWS आपको सर्वर्स देता है, ठीक है, और बहुत डिस्काउंट पे देता है। तो मतलब आप ये लगा लीजिए, अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो वो आपको 10 रुपए में पड़ेगी। ठीक है, वो इतना सस्ता दे रहा है, देता है AWS आपको सॉल्यूशन इतने सस्ते में भी देता है। बट आप एक चीज सोच के देखिए, अगर कोई आपको ये सॉल्यूशन इतने सस्ते में दे रहा है तो उसमें कोई ना कोई कैच होगा, राइट। कोई ना कोई तो डिसएडवांटेज होगा, कोई ना कोई कैच होगा। तो वो कैच क्या होता है, AWS बोलता है कि बॉस, मैं आपको ये सर्वर दे तो रहा हूँ 10 रुपए में, 100 रुपए का सर्वर मैं आपको 10 रुपए में दे तो रहा हूँ, बट आई कैन टेक इट बैक। ठीक है, पहली चीज तो आपको उस सर्वर के लिए बिडिंग करनी पड़ती है। ठीक है, अगर आपकी बिडिंग अप्रूव होगी तभी AWS आपको वो सर्वर देगा। ठीक है, दूसरा, अगर वो बिडिंग कंप्लीट करने के बाद आपने सर्वर ले लिया और बाय एनी चांस AWS को लगा कि नहीं वो सर्वर किसी और ने अच्छी बिडिंग कर दी है और AWS को वो सर्वर किसी और को देना है, तो AWS उसे आप किसी और को दे देगा। आपको बस एक फॉर्मल मेल आ जाएगी कि बॉस, द सर्वर विच इज बीन प्रोवाइडेड टू यू हैज टू बी टेकन बैक। ठीक है, एक फॉर्मल मेल आ जाएगी AWS से, आपको नोटिफिकेशन आएगा, आई गेस 1 या 2 घंटे का नोटिफिकेशन होता है। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन आएगा और नोटिफिकेशन के बाद वो सर्वर आपके यहाँ से डिलीट हो जाएगा। AWS उस सर्वर को वापस भी ले सकता है। ऑन डिमांड और रिजर्व इंस्टेंसेस में ये सिचुएशन नहीं है। AWS कभी भी आपसे वो सर्वर वापस नहीं ले पाएगा, वो रिसोर्सेज वापस नहीं ले पाएगा। स्पॉट इंस्टेंसेस में क्योंकि सर्वर का कॉस्ट बहुत कम है और उसमें यही कैच है कि दे कैन टेक द सर्वर बैक एनी टाइम व्हेन दे वांट। उन्हें जब भी वो सर्वर वापस चाहिए वो सर्वर को वापस आपसे ले सकते हैं, आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। एनी क्वेश्चंस इस स्लाइड में, किसी को कोई डाउट हो तीनों चीजों में, ऑन डिमांड, रिजर्व या स्पॉट इंस्टेंसेस के अंदर? नहीं, कूल है ना। मूविंग अहेड, और कौन कौन से परचेजिंग ऑप्शंस हैं, मतलब ये देखो, ये खरीदने का तरीका है। आप AWS से सर्वर खरीदना चाहते हो तो AWS आपको बता रहा है कि ये सर्वर खरीदने के तरीके हैं। आप एक डेडिकेटेड इंस्टेंस ले सकते हो। डेडिकेटेड इंस्टेंस का मतलब क्या होता है कि AWS आपको एक ऑप्शन देता है कि यू विल हैव अ मशीन ऑल टुगेदर ऑन अ फिजिकल सर्वर। मतलब AWS में बैकग्राउंड में अगर आप बात करोगे तो बट ऑब्वियस वर्चुअलाइजेशन ही चलती है।
तो वर्चुअलाइजेशन अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ. इट्स अ मेथड ऑफ रनिंग मल्टीपल सर्वर्स ऑन द सेम हार्डवेयर. ठीक है, आप एक हार्डवेयर के ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम साथ साथ चलाओ, उसे हम वर्चुअलाइजेशन कहते हैं. तो वर्चुअलाइजेशन के बैकग्राउंड में बहुत कुछ होता है और वहां पर कहीं ना कहीं शेयरिंग की प्रॉपर्टी चलती है. पर अगर आप चाहें कि आपको डेडिकेटेड सर्वर चलाने हैं, डेडिकेटेड रिसोर्सेज रिजर्व रखने हैं, तो वहां पर यू डू हैव दिस ऑप्शन कि हम डेडिकेटेड इंस्टेंस चला सकते हैं. और आप AWS से पूरा का पूरा होस्ट भी खरीद सकते हो, एक फुल फ्लेज फिजिकल सर्वर. You can purchase it from AWS and AWS can offer it. ठीक है, and that becomes the dedicated host. तो हमारे पास dedicated host हैं, हम अपने requirement के हिसाब से उन्हें safely रन करा सकते हैं और यूज कर सकते हैं. ओके, obviously ये दोनों options काफी महंगे हैं, they are not that cheap. ठीक है, they are very expensive. If you want to use them, you can use them, but you have to pay the charges for them accordingly. Alright, अब इसके बाद सर, हाँ जी. हाँ मतलब जो ये डेडिकेटेड इंस्टेंस था, इसके अंदर मतलब ये होता है कि एक सिंगल मशीन खरीद रहे हैं हम, नहीं सिंगल नहीं, सर्वर. एक सिंगल सर्वर के अंदर आपके पास रिजर्व वो रहेंगे रिसोर्स. ठीक है, ओके. मतलब मशीन VM की तरह ही चलेगी बैकग्राउंड में AWS के पास, बट उसको जो रिसोर्सेज एलोकेटेड रहेंगे दे विल नॉट बी शेयर्ड. राइट, सो जो CPU कोर वगैरह है, जो भी चीजें हैं, वो फिजिकली मतलब उस वर्चुअल मशीन के लिए रिजर्व रहेंगी. ठीक है, ओके. तो और दैट्स अ होस्ट में क्या वर्चुअलाइजेशन. होता है? होस्ट में और पूरा सर्वर मिल जाएगा उसे. पूरा सर्वर मिल जाएगा, हम उसको अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज अपने भी कर सकते अकॉर्डिंगली आप उसके अंदर VMs चलाना चाहो, फिजिकल मशीन चलाना चाहो, जो मर्जी करना हैं. चाहो ओके, वो ओके, ओके सर. आपकी, जो मर्जी करना चाहो वो आपकी इच्छा है, वो सारे सॉल्यूशन आपके पास है. ठीक है, सो ये सारे ऑप्शंस हैं, हम इन्हें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ अ मैनेजमेंट कंसोल ऑफ AWS लुक्स लाइक. अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये मैं AWS के कंसोल पे आ गया हूँ. ठीक है, इस तरीके से मतलब आई एम ऑलरेडी लॉग्ड इन. ठीक है, एंड हेयर इज दी सर्च बार. ठीक है, ध्यान दीजिएगा जब आप AWS पे लॉगिन हैं तो मैं यहाँ पर अपना जो रीजन यूज कर रहा हूँ, इट इज मुंबई, बिकॉज मुंबई मेरे पास है. मतलब सबसे नियरेस्ट लोकेशन पे अगर हम बात करेंगे तो मुंबई इज एट द नियरेस्ट लोकेशन. बाकी सारी चीजों में आप लॉन्च तो कहीं भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है. बट हाँ, नेटवर्क लेटेंसी का थोड़ा बहुत इशू आएगा, इंटरनेट अगर स्लो होगा तो कनेक्टिविटी थोड़ा सा लेट होगी, डिले में आएगी. इट्स बेटर टू यूज इट ऑन मुंबई. यहाँ पे सर्च करते हैं EC2. ठीक है, यू सेलेक्ट ऑन दिस EC2. ऑलराइट, ये EC2 का डैशबोर्ड है. ठीक है, ये नया वाला है. अगर आप पुराने वाला देखना चाहो तो पुराने वाला कुछ ऐसा दिखता है. ठीक है, AWS कंसोल्स वगैरह पे काफी काम करता रहता है यार, वो उनकी इच्छा है. ठीक है, सो ये AWS है. अगर आप देखोगे यहाँ पर आप स्पॉट रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप डेडिकेटेड होस्ट लगा सकते हो, रिजर्व इंस्टेंसेस वगैरह कर सकते हो. ठीक है, आपकी इच्छा है आप क्या करना चाहते हो. मैं अभी इंस्टेंसेस विंडो पे हूँ. हाल फिलहाल देर इज वन इंस्टेंस विच यू आर एबल टू सी. ये मैंने पहले टर्मिनेट किया था आज सुबह. ठीक है, बट as of now you can see I don't have any instances which is running. So ये एक इंस्टेंस दिख रहा है, थोड़ी देर में हट जाता है. अगर आपको इंस्टेंस टर्मिनेट कर देते हो, डिलीट कर देते हो, तो थोड़ी देर में कंसोल से हट जाता है. डोंट वरी अबाउट दिस. I'll click on launch instance. Yeah, I'll click on launch instance. यहां पर सबसे पहला ऑप्शन जो आपको आता है दैट इज चूजिंग द AMI. AMI क्या है? Amazon मशीन इमेज. बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो AMI स्टैंड्स फॉर Amazon मशीन इमेज. अब एक बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल सिनेरियो की बात करते हैं. आपको अपनी मशीन रेडी करनी है. यू नीड टू गेट योर लैपटॉप रेडी. ठीक है, आपने मार्केट से नया लैपटॉप खरीदा. सबसे पहले आप उस लैपटॉप पे क्या करते हो गाइस? विंडो डालेंगे. आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो, राइट? या हाँ. यहां पर भी आप मशीन ले रहे हैं, आप AWS से मशीन ले रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, करेक्ट? अब यहां पर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की ISO नहीं सेलेक्ट करते हैं. आप क्या करते हैं, ISO या USB, ISO को USB या CD या DVD पे बर्न करते हैं और फिर उसे यूज करते हैं, करेक्ट? बट अब वो केस नहीं है, मतलब इसमें वो केस नहीं है आपके पास. इन दिस वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. ओके, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. उस चीज की हम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं.
तो जनरली हमारे पास क्या होता है, अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करें, तो यहां पर प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स पड़े हुए होते हैं। मतलब AWS के अंदर या इनफैक्ट किसी भी क्लाउड सॉल्यूशन के अंदर आपके पास प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स पड़े हुए होते हैं, और उन प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स में पहले से ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है। You already have an operating system installed on those predefined templates. Got it? क्लियर है? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, पूछना हो तो बताओ। ठीक है, सो यहां पर आप देख पा रहे हो कि बहुत सी इमेजेस है, जैसे Amazon Linux है, ये macOS है पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है, we are able to see the macOS। ये Red Hat है, RHEL, SUSE Linux है, Ubuntu है, Windows की मशीन्स भी हैं, ठीक है, बाकी Debian वगैरह की कम्युनिटी भी है। तो ये सारी EMIs हैं जो क्विक लॉन्च में आपको मिलती हैं, क्विक स्टार्ट में, ठीक है। कुछ इसमें से फ्री है। फ्री टीयर का मतलब ये है कि यू डोंट हैव टू पे एनी चार्जेस यूजिंग दी EMIs। Those for which the EMIs, the free tier is not eligible, you have to pay the charges for using these। ठीक है, इन EMIs को यूज करने का आपको पैसा पे करना पड़ेगा। आप अपनी खुद की EMIs भी बना के रख सकते हो, जो मेरे पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली। दीज आर मार्केट प्लेस। यहाँ पे जितनी EMIs अवेलेबल हैं, ये सारी की सारी EMIs ज्यादातर चार्जेबल हैं, एंड दे आर प्रोवाइडेड बाय द OEM। किसी प्रोडक्ट, जैसे स्प्लंक एंटरप्राइज की बात करो, वो स्प्लंक ने बनाई हुई। ओपन VN की बात करोगे, ओपन VN ने बनाया हुआ है, ठीक है। बाराकोडा की बात करोगे तो ये बाराकोडा नेटवर्क ने बनाया हुआ, फायरवॉल वगैरह के। जूनिपर आपके पास फायरवॉल हो गया, वो आपका बेसिकली जूनिपर नेटवर्क। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग EMIs हैं जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब, और ये सारी ज्यादातर अगर आप बात करेंगे तो ये सारी की सारी ज्यादातर जो है पेड रहेंगी, ठीक है, दे विल बी पेड, राइट। ये देखिए, स्पिन मेकर, GitHub C हो गया आपके पास, ठीक है। इनके चार्जेस आपको बता रहे हैं कि आपको 0.0 सेंट से लेके 0.0 पर आवर तक पड़ेगा, 50 आवर्स तक पड़ेगा, ठीक है, व्हाटएवर, राइट। तो ये आपको बता रहा है कि जो भी चार्जेस हैं, टॉर्टोइज हो गया आपके पास सस्पेन के लिए, एंसिबल कंट्रोल नोड हो गया ubuntu के लिए, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये फ्री एलिजिबल भी हैं कुछ चीजें इसमें, बट देन अगेन ये, राइट। सो वी कैन हैव दीज मार्केट प्लेस में कैटेगराइजेशन कि कहाँ से आपको इमेजेस चाहिए, ठीक है जी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी चाहिए आपको। और इसके अलावा कुछ देखो, इसमें क्या है, मार्केट प्लेस में जितनी भी इमेजेस आपको मिलेंगी ना, दे आर ट्रस्टेड, राइट। दे आर ट्रस्टेड इमेजेस बिकॉज दे आर क्रिएटेड बाय द OEM। जो कंपनी इनको ओन करती है इन सॉफ्टवेयर को, उन्होंने उन कंपनीज ने ये सॉल्यूशंस AWS में डाला हुआ है। ऑब्वियसली AWS इसमें अपना खुद का कट भी लेती है और प्रोवाइडर्स को भी देती है, ठीक है। बट कुछ EMIs ऐसी हैं जिनका कोई ट्रस्ट नहीं है, ये लोगों ने बना के इस पे ऊपर डाली हुई है, ठीक है। और इनका कोई ट्रस्ट नहीं है। मतलब ये EMIs ऐसी हैं जो आप यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट विद योर ओन रिस्क, ठीक है। इसमें ना ही AWS को सपोर्ट कर सकता है ना, क्योंकि ये EMIs किसी भी बंदे ने बना के रखी हो सकती है, ठीक है। ये सारी की सारी ऐसी में पड़ी हुई हैं, सब कुछ है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे दे कुड बी, दे कुड बी जेन्युइन, देयर कुड बी सम इश्यूज विद इट। So these are community EMIs। लोगों ने इसमें, मतलब जनरली AWS ने इस पे स्कैनिंग वगैरह लगा रखी होती है, तो रेस्ट एश्योर की जो बेसिक इश्यूज होते हैं, दे आर ऑलरेडी बीइंग सॉर्टेड आउट। बट देन अगेन यू कैन नॉट ट्रस्ट ऑन दीज कि हाँ ये क्या है, ये क्यों है, ये किस लिए, ठीक है। तो ये सारी EMIs हैं आपके पास भाई। क्विक स्टार्ट है, EMI है, मार्केट प्लेस है, कम्युनिटी EMI। ओके, सो आई गो टू क्विक स्टार्ट EMI। मैं अभी के लिए एक Amazon Linux की इमेज यूज करूंगा, आप विंडोज की भी यूज कर सकते हैं, और यही आपको करना भी है, ठीक है। तो मैंने Amazon Linux की इमेज यूज करी, HVM है, इट्स बेसिकली the virtualization type we have, virtual machines। SSD वॉल्यूम्स हैं आपके पास, ठीक है। इनके बारे में बता रहा है, x86 CPU आर्किटेक्चर पे लिखना है या ARM आर्किटेक्चर पे लिखना है, ये CPU चिप्स जैसे बनती है उनके आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो वी गॉट along with this, you can click on select, ठीक है। यू कैन क्लिक ऑन सेलेक्ट, चूज एन इंस्टेंस टाइप। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ गया है कि यू कैन सेलेक्ट योर ओन इंस्टेंस टाइप, जो भी इंस्टेंस टाइप आपको सेलेक्ट करना है आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। इंस्टेंस टाइप क्या है? इंस्टेंस टाइप इज द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन which you want to attach to this instance। आपको इस इंस्टेंस पे जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, आप वो यहां लगा सकते हैं, ठीक है। कितना CPU आप देख रहे हो, कितनी RAM आप देख रहे हो, कितनी टाइप की SSDs आप देख रहे हो, हार्ड ड्राइव क्या देख रहे हो, क्या नेटवर्क की स्पीड आपको चाहिए,
क्या आप IPv6 सपोर्ट देख रहे हो या नहीं, ये सारे ऑप्शंस, राइट? सो you're talking about the hardware configuration which you would want on your system. आप अपनी मशीन पे किस तरीके का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, सेटअप देख रहे हैं, वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, कुछ पूछना है गाइस? अब देखो यहाँ पे बहुत सी कैटेगराइजेशन है, ठीक है, पुरानी जनरेशन भी हैं और जनरेशन भी आप देख सकते हो। ये सारे के सारे आपके पास टाइप हैं, T2, D1, M1, P1, R1 एंड ऑल दिस। तो ये सारी कैटेगराइजेशन है जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। देयर आर लॉट मैनी ऑफ देम, ठीक है, लॉट मैनी ऑफ देम। जैसे M1 वाली में सब मेमोरीज से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन अच्छी रहती है। नीचे आप आओगे और आपको ये R1s वगैरह दिखेंगी, ये सारी की सारी स्टोरेज से रिलेटेड हैं, ठीक है। सी जो आपको होता है ऊपर, जी आपको दिखेगा, जी इज बेसिकली फॉर ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, यू नो, जीपीयू अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं। सी इज फॉर जनरली दी कंप्यूटिंग कॉन्फ़िगरेशन, कंप्यूटिंग पावर अच्छी होती है। T1 वगैरह की बात करोगे, M1 वगैरह की बात करोगे, सो दीज आर बेसिकली दी नॉर्मल जनरल पर्पस कैटेगराइजेशन, ठीक है। सो अगर आपको पैसे नहीं लगवाने हैं, इफ यू डोंट वांट टू पे फॉर इट, यू कैन सेलेक्ट T2.micro, ठीक है, बिकॉज दिस इज फ्री टियर। फ्री टियर का मतलब क्या है? एज यू कैन सी, माइक्रो इंस्टेंसेस आर अवेलेबल फॉर AWS फ्री टियर यूजर्स, व्हिच मींस दैट यू विल बी paying, you don't have to pay for anything for the first 12 months following your AWS sign up date. You will have up to 750 hours of micro instances each month, right? When your free tier expires, if your user exceeds from the free tier restriction, you have to pay the standard pay as you go service fee. ओके, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। तो साल भर बाद अपना नया अकाउंट बना लो, वो ज्यादा बेटर है बजाय इसके कि पुराने अकाउंट में चार्जेस पे करते हो, ठीक है। तो मतलब चार्जेस आप कैसे पता करेगा आपके मंथ का चार्जेस कितना है? यहाँ पर ऊपर आपका यूजर नेम दिख जाएगा, इसका बिलिंग डैशबोर्ड खोल सकते हैं आप, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपका कितना बिल है, क्या बिल नहीं। मेरा अभी करंट जो इस मंथ का पेमेंट है, इट इज ऑलमोस्ट, तो मेरा ये ऑलमोस्ट साल भर हो गया है, तो फ्री टियर वे टियर बिल्कुल खत्म हो गया है जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। सो वी बेसिकली हैव टू पे, देखिए $8 का मेरा EC2 का चार्जेस है जो इस मंथ का लगा है। जो भी सर्विसेज आप यूज करते हैं उसका बिलिंग आपके पास आता रहता है, राइट? सो हाँ जी, सर फ्री टियर अकाउंट मतलब कितने, मतलब पर्टिकुलर एक टाइम के लिए रहता है या फिर? 12 महीने ना, जब से आपने अकाउंट बनाया तब से 12 महीने के लिए, 12 महीने के बाद फ्री टियर हट जाएगा। ओके, फिर 12 महीने के बाद आपका फ्री टियर हट जाएगा, उसके बाद आपको नहीं, उसके बाद फिर चार्ज लगता है? उसके बाद आपको चार्ज। ओके, राइट, सो यू कैन सी T2.micro ये आपके पास है, 1 month चल रहा है, इट इज ऑलरेडी। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल, ठीक है। ये सबसे अच्छी विंडो है और इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सारी कॉन्फ़िगरेशंस मिलती हैं जो हम सेटअप करना चाहते हैं, जो या हम कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, ठीक है। पहली चीज है, आप कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस डिप्लॉय करना चाहते हो, हाउ मेनी नंबर ऑफ इंस्टेंसेस आर यू प्लानिंग टू डिप्लॉय व्हाइल दिस यूजिंग दिस विजार्ड, राइट? मैं अभी के लिए एक करना चाहता हूं तो आई विल हैव दिस ओवर हियर, ठीक है, आई विल हैव इट ओवर हियर। परचेजिंग ऑप्शन में यहाँ से आपको स्पॉट इंस्टेंस मिलते हैं, ये करंट अवेलेबिलिटी जोन्स में, यहाँ पर 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, उसमें ये चार्जेस हैं आपके पास। आपको इस बिडिंग में से ज्यादा बिडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। आप इससे कम बिडिंग करोगे तो आपको पक्का ही नहीं मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू मेक अ रिक्वेस्ट मोर देन दिस, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, बिडिंग चार्जेस हैं जो आपको लगाने पड़ेंगे। इफ यू आर नॉट अप्लाइंग द बिडिंग चार्जेस, ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एक्सेसिंग दिस सॉल्यूशन, ठीक है। एंड देन ऑब्वियसली परसिस्टेंट रिक्वेस्ट वगैरह आपको देनी है तो आप दे सकते हो। आई एम नॉट गोना डू एनी ऑफ दीस थिंग्स, ठीक है, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। देन मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट ऑप्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट नेटवर्किंग। अभी हम लोगों ने VPC के बारे में नहीं पढ़ा है, VPC एक पूरा टॉपिक है जो हमें पढ़ना है बाद में, तो हम VPC को अभी छोड़ देते हैं। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट चेंज एनीथिंग ऑन दीज 3, दिख रहा है आपको? नेटवर्क, सबनेट्स एंड ऑटो साइनिंग पब्लिक IP, ठीक है। हम इन तीनों में से कोई भी चीज नहीं छेड़ेंगे। We will talk about them when we are going to learn about VPC, ठीक है, when we are going to learn about VPC. Then we have an option of creating placement group,
प्लेसमेंट ग्रुप बेसिकली क्या होता है अगर हम बात करें, ठीक है, तो प्लेसमेंट ग्रुप में बेसिकली हम ये डिसाइड करते हैं कि देखो ये ना, ये थोड़ा सा AWS आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि सर्वर कैसे लॉन्च करो। अब देखो, सर्वर एक्चुअली में तो जाना AWS में ही है, ठीक है, AWS के डेटा सेंटर पे। तो हम मुंबई सेलेक्ट करके बैठे हैं, तो लेट्स एज्यूम ये जो इंस्टेंस मैं बना रहा हूं ये मुंबई के डेटा सेंटर में जाएगा, ठीक है। अब ये मुंबई के डेटा सेंटर में जाएगा तो इवेंचुअली किस तरीके से ये डिप्लॉय होगा, तो हमारे पास प्लेसमेंट ग्रुप ये स्ट्रेटजी डिफाइन करता है कि सर्वर इवेंचुअली कहाँ डिप्लॉय होगा। तो एज यू कैन सी, the strategy of placement group determine how the instance are placed on an underlying hardware। तो एक्चुअली में जो डेटा सेंटर जो सर्वर्स हैं उन पे किस तरीके से चलेगी, ठीक है। एक क्लस्टर प्लेसमेंट ग्रुप का मतलब क्या होता है कि आपके जो इंस्टेंस बनेंगे वो इवेंचुअली कभी भी सेम होस्ट पे नहीं बनेंगे, ओके, दे विल बी डिप्लॉयड ऑन टू मल्टीपल होस्ट। तो ये एंटी एफिनिटी की तरह काम करता है आपके पास, ठीक है। सो यू विल हैव द इंस्टेंसेस, लाइक अगर मैं एक बार क्लस्टर ग्रुप सेलेक्ट करता हूं तो वो कोशिश ये करेगा कि दूसरे इंस्टेंस को जिसमें मैं सेम क्लस्टर डिफाइन करता हूं या सेम प्लेसमेंट ग्रुप डिफाइन करता हूं, ठीक है, तो वो उस इंस्टेंस को उस सर्वर पे ना बना के किसी और सर्वर पे बनाए, ठीक है। ओके, इसके अलावा पार्टीशंस हैं और स्प्रेड है। स्प्रेड का मतलब ही क्या है कि शेयर्ड हार्डवेयर रिसोर्सेज पे चलेगा। पार्टीशन का मतलब क्या है, हार्डवेयर रिसोर्सेज को आप कंप्लीटली सेपरेट कर दोगे अलग अलग पार्टीशंस में और उनके ऊपर आप इंस्टेंसेस डिप्लॉय करोगे, ठीक है। सो प्लेसमेंट ग्रुप स्ट्रेटजीज हैं जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपके सर्वर को एक्चुअली में AWS पे या आपके फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर कहाँ जाके डिप्लॉय करना है, ठीक है। सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ सेटअप व्हिच आई कैन कॉन्फ़िगर। अभी के लिए मैं कोई प्लेसमेंट ग्रुप नहीं ले रहा हूं। आई एम नॉट गोना गिव एनी कैपेसिटी रिजर्वेशन एज वेल, राइट। ये सारे ऑप्शंस बताता है आपके पास, ठीक है, कि अगर आपको लेट्स सपोज कैपेसिटी रिजर्वेशन करनी है रिजर्व इंस्टेंसेस के लिए तो यू वांट। IAM हम लोग मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। गाइस नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रॉब्ली कल होगी और उसके बाद हम नेक्स्ट सैटरडे ऑफ रहेगा हमारा, ठीक है। हम उसके बाद संडे को मिलेंगे, तो ऑब्वियसली भाई दूज एंड ऑल दैट, राइट। सो कल की क्लास है, कल की क्लास 4 बजे है, दैट्स फॉर श्योर। नेक्स्ट वीक की जो क्लास है सैटरडे को वो नहीं है, संडे को होगी, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, वो छुट्टी है वो हम लोगों ने पहले ही लगा रखा था। IAM रूल्स, अभी के लिए कोई रूल सर देना है तो आप दे सर सकते हो। IAM रूल अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है अगेन, तो वी आर नॉट गोइंग टू टच बेस ऑन दिस, हेलो ओके। सर हाँ जी। सर ये प्लेसमेंट ग्रुप एक बार और बताइए ना। प्लेसमेंट ग्रुप बेसिकली डिफाइन करता है, देखो AWS का डेटा सेंटर है, यस उसके ऊपर सर्वर्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब हो सकता है जब आप एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करो तो वो EC2 इंस्टेंस किसी एक सर्वर पे जाके एज अ VM चल जाएगा, करेक्ट। ओके अब वो जब उसे एज अ VM बनाएगा तो अगली कोई रिक्वेस्ट अगर आएगी मान लो, तो वो VM कहाँ बनेगा, क्या वो उसी फिजिकल सर्वर पे बनेगा या अलग फिजिकल सर्वर पे बनेगा, या बेसिकली फिजिकल सर्वर के अंदर आप अलग अलग शेयरिंग वाले पार्टीशंस बना दोगे या एक आइसोलेटेड आर्किटेक्चर पे चलाओगे, वो सारी चीजें डिफाइन करता है प्लेसमेंट ग्रुप, ओके ठीक है। तो ओके प्लेसमेंट ग्रुप बनाने का मतलब ही ये है कि मैं कुछ कंट्रोल देना चाहता हूँ। लेट सपोज मैंने प्लेसमेंट ग्रुप क्लस्टर स्ट्रेटजी के साथ बना दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैंने प्लेसमेंट ग्रुप में 10 इंस्टेंस लॉन्च किए ना उस प्लेसमेंट ग्रुप में, तो वो 10 के 10 इंस्टेंस 10 अलग अलग फिजिकल सर्वर पे जाके ही बनेंगे, एक पे नहीं बन सकते, ओके सर ठीक है। तो वो प्लेसमेंट ग्रुप बेसिकली ये चीज डिफाइन करता है एक्चुअली में मेरा सर्वर कहाँ जाने वाला है, कैसे डिप्लॉय, ओके ओके। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप हाइबरनेशन बिहेवियर की बात कर रहे हो, मैं लिनक्स मशीन यूज कर रहा हूं तो उसमें हाइबरनेशन नहीं होता है। एक मॉनिटरिंग है। मॉनिटरिंग का मतलब क्या है, AWS इस सर्वर के ऊपर मॉनिटरिंग बाय डिफॉल्ट करेगा। तो AWS इस चीज को वैसे भी ट्रैक करता है कि अगर आपने एक EC2 डिप्लॉय किया है तो उसमें कितना CPU यूटिलाइज हो रहा है, कितनी हार्ड ड्राइव यूटिलाइज हो रही है, कौन कौन सी सेटिंग्स कैसे कैसे यूटिलाइज हो रही है, वो बाकायदा AWS अपने आप में मैनेज करता है, मॉनिटर करता है, मेजर। बट अगर आपको उसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉनिटरिंग करवानी, आई एम टॉकिंग अबाउट adding on some additional performance. Take an example, we are looking out for a situation where I say
मेरे को सर्वर्स या रिसोर्सेज देख रहे हैं पर मिनट के बेसिस पे। पर मिनट के बेसिस पे मतलब क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट वो हर 5 मिनट के बाद डेटा कलेक्ट करता है। मैं चाहता हूँ नहीं, हर 5 मिनट में नहीं, हर 1 मिनट में डेटा कलेक्ट हो। दैट इज वेयर द मॉनिटरिंग वुड कम इनटू। तो मैं ये मॉनिटरिंग भी एनेबल कर सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। राइट, बाय डिफॉल्ट एडब्ल्यूएस आपको हर 5 मिनट का डेटा देगा कि 5 मिनट में सर्वर कितना यूटिलाइज हो रहा है, कितना सीपीयू चल रहा है, कितनी मेमोरी चल रही है, कितना नेटवर्क ट्रैफिक, एसएसडी की हार्ड ड्राइव का जो परफॉर्मेंस है वो सब कुछ। बट अगर आपको उसे 1 मिनट में लेके आना है तो वी विल सेलेक्ट द मॉनिटरिंग ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट यू टॉक अबाउट क्रेडिट स्पेसिफिकेशंस। अब ये भी एक अच्छी चीज है, इसको पहले T2 T3 अनलिमिटेड कहा करते थे लोग, ठीक है, बट अभी के लिए इसको हम लोग क्रेडिट स्पेसिफिकेशन कहते हैं। ओके, so when you talk specifically about this, okay, what exactly the credit specification is, इसको आप इस तरीके से समझो यार, ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझिए कि take an example, we are talking about having some configuration. मैंने अपने सिस्टम पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर दी, कुछ सेटअप डाल दिया, कुछ बॉक्स मतलब कॉन्फ़िगर, मतलब अगर बहुत लेमन लैंग्वेज में बात करेंगे तो हम लोगों ने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह कर दी हैं एंड सेटअप कर दिया, ठीक है। अब कंसिडर दिस, ठीक है, कंसिडर दिस ऑन अ वेरी सिंपल एग्जांपल। वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्डवेयर सेलेक्टेड बाय मी, ठीक है, मैं कुछ हार्डवेयर वगैरह सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और मेरे सिस्टम पे वो हार्डवेयर ठीक से कंज्यूम नहीं, ठीक है, एक बहुत लेमन तरीके से अगर हम बात करेंगे तो मेरे सिस्टम पे हार्डवेयर प्रॉपर्ली कंज्यूम नहीं हो रहा। हम एक सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि लोड उतना आ ही नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली आपको चार्जेस ज्यादा देने पड़ेंगे क्योंकि हार्डवेयर उतना यूज नहीं हो रहा है, आपका लोड उतना आ नहीं रहा है, पर आपने हार्डवेयर ज्यादा ले रखा है। तो आप ये एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन क्या करेगा, ये आपके सिस्टम की एडवांस मॉनिटरिंग करेगा और इस चीज को वेरीफाई करेगा कि कौन सा सर्वर ऐसा है, ठीक है, जिसपे आपका मतलब इस सर्वर पे वो एडवांस मॉनिटरिंग करेगा और वेरीफाई करेगा कि क्या लोड ज्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर लोड ज्यादा नहीं आ रहा है और आपका सिस्टम में हार्डवेयर इतना यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो क्या करेगा, एडब्ल्यूएस इस चीज में एक अच्छी बात करेगा कि वो आपसे पूरे पैसे चार्ज नहीं करेगा। बट अगर कभी ऐसा होता है कि आपको ज्यादा हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ जाए अचानक से, तो वो उस पैसे को एडजस्ट कर देगा आपके एडवांस वाले में, ठीक है। तो यू टॉकिंग अबाउट गोइंग ओवर द थ्रेशोल्ड वैल्यू। जैसे ही आप थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर जाएंगे एडब्ल्यूएस समझ जाएगा कि यार ज्यादा कर रहा है। अब मेरे को वो जो पैसे वहां पर बच रहे थे, जहां पर मेरा हार्डवेयर बच रहा था, वो हार्डवेयर अब मैं या वो पैसे मैं यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगा और यूजर को प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये एक ऑप्शन है जो हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। तो मतलब रिसोर्सेज को अकॉर्डिंगली, यूज के अकॉर्डिंगली कम या ज्यादा करते हैं। हाँ बिल्कुल। ओके, एनी क्वेश्चंस, कुछ पूछना होगा इस? क्लियर है? यस सर। ठीक है, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन, ठीक है, अगली चीज को समझने की कोशिश करते हैं। फाइल सिस्टम है, फाइल सिस्टम में अगर आपको एक पार्टीशन वगैरह बनाने हैं, मतलब अभी हमने ईएफएस पढ़ा नहीं है, तो ईएफएस जब फाइल सिस्टम स्टोरेज पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। यहाँ पर कुछ एडवांस सेटिंग्स है जिसमें आप कुछ मेटा डेटा वगैरह दे सकते हो। मेटा डेटा का मतलब क्या है कि आप चाहते हो कि जब सिस्टम इनिशियली बूट हो, फर्स्ट बूट अब मेरे पास आए, तो फर्स्ट बूट में मैं अपनी मशीन पे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह देना चाहता हूँ। मे बी टेक एन एग्जांपल, हम लोग जैसे ये लिनक्स की मशीन है तो मैं यहाँ पर बैश की स्क्रिप्ट चला सकता हूँ। बैश ऐसे यूजर ऐड विशाल नाम का यूजर ऐड कर देते हैं, ठीक है, जो भी करना चाहो इनके लिए, या स्लैश डेटा कोई डायरेक्टरी भी बना लेता हूँ। तो आई एम जस्ट डूइंग सम बेसिक एक्टिविटीज फॉर क्रिएशन ऑफ समथिंग, राइट। मशीन में कुछ कस्टमाइजेशन करने हैं, मैं फर्स्ट बूट के टाइम पे कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहता हूँ, इनिशियलाइजेशन करना चाहता हूँ, तो आई कैन डू इट एज पर माई रिक्वायरमेंट।
ओके, एनी क्वेश्चंस? मतलब सर ये जब ये इंस्टेंस क्रिएट होगा तब ये यूजर ऐड हो जाएगा, हाँ, मतलब वो अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन है। के हिसाब से सेटअप कर सकता है। ओके। ओके, एनी क्वेश्चंस? Alright, so let's move ahead and talk about the next one. ठीक है, अगली चीज के बारे में बात करते हैं, अगली चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। स्टोरेज, मशीन में कितना हार्ड ड्राइव आपको देना है। ओके, मशीन पे आपको कितना हार्ड ड्राइव प्रोवाइड करना है, ठीक है, वो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, हार्ड ड्राइव जैसे कि आपको लिख रहा है रूट, डिवाइस का नाम ये रहा, स्नैपशॉट आप देख रहे हो यहाँ पर, आपके पास स्नैपशॉट आपको दिख रहा है। उसके बाद साइज आप दे सकते हो कि व्हाट इज द साइज ऑफ हार्ड ड्राइव विच वी आर लुकिंग ऑन। ओके, वॉल्यूम टाइप, अभी हम लोग ईबीएस नहीं पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। व्हाट इज द वॉल्यूम टाइप। बहुत से वॉल्यूम टाइप्स हैं जो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। Okay, so you can basically have it, you can basically get it configured with, right? General purpose SSD है, general purpose SSD part 2 है, provision IOPSs है हमारे पास, magnetic disk है, तो I'll have the general purpose SSD normal 8 GB का मैंने स्टोरेज दिया है। EBS हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कल, ठीक है, तो हम इसको बाद में पढ़ेंगे कि क्या होता है ये, बट अभी के लिए आपने ये दे दिया, रूट है, डिवाइस डेव ये रहा, 8 GB का स्टोरेज है, IOPS जो मेरे को मिल रहा है वो 100 IOPS मिलेगा, इनपुट आउटपुट पर सेकेंड, that can be bustable up to 3000 IOPS depending upon the size of your hard drive। ठीक है, तो वो आपको बता रहा है कि 100 IOPS आपके पास रन करेगा। IOPS आई एम प्रीटी मच श्योर आप लोग समझते होंगे, इनपुट आउटपुट पर सेकेंड, कितना कम्युनिकेशन अलाउड होना चाहिए, कितना डेटा आप लिख सकते हो या राइट कर सकते हो। ठीक है, डिलीट और टर्मिनेशन का मतलब ये है कि जब आप इंस्टेंस को डिलीट करेंगे तो स्टोरेज अपने आप डिलीट हो जाए। डू आई वांट टू एनक्रिप्ट इट, ऐसे नहीं, अभी मेरे को एनक्रिप्शन वगैरह पे टेंशन लेने की। टैग, द नेक्स्ट ऑप्शन। ठीक है, जब आप टैग पे आते हो तो टैग क्या कहता है। ठीक है, टैग का मतलब क्या है, अगर हम बहुत लेमन में बात करेंगे, ठीक है, तो टैग आपको ऑप्शन देता है कि यार वी आर लुकिंग आउट फॉर, जैसे अगर आप दुकान वगैरह पे जाते हो, ठीक है, अगर आप दुकान वगैरह पे जाते हो तो वहां पर क्या होता है आपके पास कि आप सिंपली अगर बहुत लेमन लैंग्वेज में बात करें तो आप किसी भी सामान को देखते हो तो उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ होता है। टैग ये बताता है कि वो सामान एक्चुअली में है क्या, क्या यूज है उसका, किस तरीके से आप उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, या सर किस तरीके से आप उसे यूज कर सकते हो, किस तरीके से आप उसकी स्पेसिफिकेशंस को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें टैग्स से मिलती हैं। तो यहाँ पर आप जो सर्वर बना रहे हैं उस सर्वर के ऊपर भी आप टैग्स दे सकते हो। ठीक है, जनरली नेम टैग अच्छा होता है, नेम टैग दो। ठीक है, नेम टैग ऐसे माय फर्स्ट EC2। ठीक है, ये रहा, सेलेक्ट करेंगे सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट में आप सिक्योरिटी ग्रुप दे सकते हो। सिक्योरिटी ग्रुप इज फायरवॉल। ठीक है, क्या पैकेट अलाउ है मेरी मशीन पे, क्या पैकेट मुझे अलाउ करनी है। ठीक है, तो मैं एक सिक्योरिटी ग्रुप बना सकता हूं, उसका नाम दे सकता हूं ऐसे 30 अक्टूबर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपने क्या देना है, टाइप SSH है, ठीक है, प्रोटोकॉल TCP है, पोर्ट रेंज 22। ठीक है, SSH TCP पोर्ट रेंज 22, सोर्स कस्टम है, एनीवेयर है, माई IP। ओके, सो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेटअप कर सकते हो कि कहां से रिक्वेस्ट अलाउ होनी चाहिए। क्या मैं अपने IP से करूं, मतलब मेरा पर्सनल जो इंटरनेट का IP है वो, क्या मैं कहीं से भी अलाउ करूं, या अगर आपको कोई स्पेसिफिक रेंज देनी है तो आप वो कर सकते हो। तो SSH बेसिकली एक CLI टूल है, जिससे CLI इंटरफेस है जिससे मैं लिनक्स मशीन का एक्सेस ले सकता हूं। तो ये मैंने SSH यहाँ पे सेलेक्ट किया। आप कुछ और भी सेलेक्ट कर सकते हो, यू कैन बेसिकली सेलेक्ट एनी अदर सॉल्यूशन एज वेल। जैसे HTTP है, अगर विंडोज का आपको एक्सेस लेना है तो आप RDB लोगे। ठीक है, RDB भी यहाँ दिया होगा, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, अगर आपको यूज करना है।
ठीक है, एक सिंगल सिक्योरिटी ग्रुप को ही मैं मल्टीपल इंस्टेंसेस के साथ एसोसिएट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को इंस्टेंसेस बनाना है तो हर बार मुझे सिक्योरिटी ग्रुप देना पड़ेगा, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, अगर बहुत लेमन लैंग्वेज में बात करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने सेटअप को कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। ठीक है, एक ही सिक्योरिटी ग्रुप को बार बार मैं यूज कर सकता हूँ, उससे कोई भी प्रॉब्लम मेरे को नहीं होने वाली। सर सिंगल सिक्योरिटी ग्रुप में मल्टीपल सर्विसेज अलाउ कर सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल यार, 50 करो, यहाँ पर ऐड रूल करते रहो बस। अच्छा हाँ, अच्छा ऐड रूल करके, ओके। आप यहाँ ऐड रूल करते रहिए, जितनी बार आप ऐड रूल करेंगे आपको मिलता जाएगा। कॉलेज तो अभी के लिए मैंने ऐसे चलाओ किया। रिव्यू एंड लॉन्च में आ जाते हैं, बाकी सारी चीजें पढ़ सकते हो यार। अमेजोन लिनक्स है, इंस्टेंस टाइप आपने सेलेक्ट किया है, ये मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है। ठीक है, इंस्टेंस डिटेल में क्या क्या सेटिंग्स आपने दी हैं वो सब कुछ दे दिया आपने, नंबर ऑफ 20 इंस्टेंस 1 वीपीसी अपने आप सेलेक्ट किया हुआ है, एफिनिटीज वगैरह ऑफ कर रखी हैं, कुछ नहीं लिया हमने प्लेसमेंट ग्रुप वगैरह में। ठीक है, ये टॉक अबाउट परचेजिंग ऑप्शंस, स्पॉट रिक्वेस्ट, मैंने स्पॉट रिक्वेस्ट सेलेक्ट किया था। ठीक है, I'll come back to the review once again। ठीक है, तो ये रहा, मैंने परचेजिंग ऑप्शन में ऑन डिमांड रखा हुआ है, दिस इज ऑन डिमांड। ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस आपके पास हैं। स्टोरेज आपने कितनी दी है, 8 GB। टैक्स में आप आ गए हैं, टैक्स में की नेम वगैरह आपने दे दिया, नाम है इंस्टेंस वैल्यू का नाम माई फर्स्ट इज, राइट। सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकता हूँ। क्लिक ऑन लॉन्च। ठीक है, अब AWS क्या कहता है, AWS कहता है कि सर ठीक है, आपने इंस्टेंस लॉन्च कर दिया, ऑब्वियसली आप इस इंस्टेंस को एक्सेस करोगे अपने लैपटॉप से, क्योंकि AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर में लॉन्च हो रहा है। ये पर्सनली आपके पास कहीं नहीं लॉन्च हो रहा है, ये लॉन्च हो रहा है AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब AWS आपको कहता है कि इसे एक्सेस कैसे करोगे, तो सिंपल यूजर नेम पासवर्ड जो डालने के ऑप्शंस हैं वो AWS नहीं देता। AWS कहता है कि देयर हैज टू बी अ सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर, बिटवीन मी, मैं अपने लैपटॉप से बैठा हूं, बिटवीन माय लैपटॉप एंड द AWS डेटा सेंटर। ठीक है, और उस सिक्योर कम्युनिकेशन को मैनेज करने के लिए इट बेसिकली यूज दी सिंपल क्रिप्टोग्राफी मैकेनिज्म एंड असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी मैकेनिज्म, जहां पर एक पब्लिक प्राइवेट कीज का कॉम्बिनेशन होता है, और उन कीज को यूज करके आप अपने सिस्टम पे लॉग इन कर सकते हो या अपने आप को वैलिडेट कर सकते हो। ठीक है, सो वो आपसे ये कहता है कि वी कैन सेलेक्ट द की पेयर और यू कैन सेलेक्ट, चूज टू सेलेक्ट की पेयर। ठीक है, आप एक सिंगल की पेयर को, जैसे मेरे पास ये सारे की पेयर्स बने हुए हैं, मैं इन्हीं को यूज कर सकता हूँ बार बार, या आप अपना खुद का नया की पेयर बना सकते हैं। I'll say create मेनू की पेयर, मैं RSA यूज करूंगा, ये एक और एनक्रिप्शन मेथड है जो उन्होंने यूज किया, तो I'll use the RSA वन विच इज स्टैंडर्ड डिफॉल्ट वन, 30 अक्टूबर, ये यूज कर लेते हैं। ठीक है, डाउनलोड की पेयर मेरे पास डाउनलोड हो गया, 38 अक्टूबर टाइम, दैट्स व्हाट द RSA इज, ये बता रहा है आपके पास। You have to download the private key before continue. ठीक है, store it in a secure and accessible location. You will not be able to download the file again after it is created. तो ये plain simple अंग्रेजी में आपको समझा रहा है कि बॉस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आप ये स्टेप नहीं सेलेक्ट करते हैं और आप बिना इसके चलते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, आप इंस्टेंस पे लॉगिन ना कर पाए। ठीक है, एंड दैट कुड बी द सिचुएशन। तो मैंने यहाँ 38 पैन डाउनलोड कर लिया, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक किया। Okay. यस, उसने उस विंडो से स्पॉट इंस्टेंसेस की डिटेल को प्रॉपर्ली कैप्चर नहीं किया था रिक्वेस्ट ने, अब कर लिया। योर इंस्टेंस इज नाउ लॉन्चिंग, योर फॉलोइंग इंस्टेंस हैज बीन लॉन्च्ड। इसके लॉग्स वगैरह आपको देखने हैं वो यहाँ देख सकते हो। नोटिफाइड के लिए आप बिलिंग अलर्ट लगा सकते हो, विल टॉक अबाउट अलर्ट्स लेटर। व्यू इंस्टेंसेस, दिस इज माय इंस्टेंस which is currently in pending state. You can see pending state में है, t2.micro आया है, कोई अलार्म मैंने अभी लगाया नहीं है। एक अवेलेबिलिटी जोन में जाके डिप्लॉय हुआ है जिसका नाम है AP South 1A।
Okay, so that's the availability zone on which the instance is deployed. DNS की डिटेल्स आपको दिखा रहा है, IPs वगैरह आपको दिखा रहा है, ठीक है। जो देखने वाली बात है, यहाँ डिटेल में आके देखिए, इंस्टेंस की आईडी आपको दिख गई है और ये पब्लिक आईपी, ठीक है। अब ये पब्लिक आईपी है, इस पब्लिक आईपी को मैं कॉपी करके एक बार अपने लैपटॉप से पिंग करने की कोशिश करता हूँ। कॉपी, मैं अपना CMD ओपन कर लेता हूँ, पिंग करेंगे। सी पिंग का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अगर आपको याद हो, मैंने अपने सिक्योरिटी ग्रुप में पिंग के लिए रूल नहीं लिखा, ठीक है। तो पिंग के रूल के लिए ICMP होता है, मैंने अपने सिक्योरिटी ग्रुप में ICMP के लिए कोई रूल नहीं लिखा है। क्योंकि मैंने ICMP के लिए कोई रूल नहीं लिखा है तो वो यहाँ पर दिखा भी नहीं रहा है, ठीक है, कि पिंग होगा नहीं होगा, इसलिए वो पिंग का कोई रिप्लाई भी नहीं दे रहा है, एज यू कैन सी, ठीक है। तो अब मेरे को अगर अपने सिक्योरिटी ग्रुप को मॉडिफाई करना है तो ये रहा सिक्योरिटी, क्लिक ऑन दिस, यहाँ पर ये सिक्योरिटी ग्रुप दिख रहा है। यू कैन ओपन इट इन न्यू टैब, आप न्यू टैब पे आ सकते हैं। ये आपका सिक्योरिटी ग्रुप, इसमें बेसिकली आपको सिंपल रूल जो दिख रहे हैं वो 22 नंबर पोर्ट के लिए दिख रहे हैं। वी कैन एडिट द रूल, वट एवर रूल यू वांट टू ऐड, ठीक है। और यहाँ पर आप एक नया रूल ऐड कर सकते हो, ठीक है। ICMP अलाउ करना है, ऐसे ऑल ICMP IPv4 से अलाउ करना है, कमिंग फ्रॉम एनीवेयर। सेव रूल करते हैं। जैसे ही आप सेव रूल करोगे और अब यहाँ के पिंग करने की कोशिश करोगे, आपको पिंग होना चालू हो जाएगा। सबसे पहली चीज जो होती है, अगर आप कभी भी नेटवर्क्स की रिसोर्सेज को एक्सेस करने की कोशिश करते हो, द वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच यू चेक इट आउट इज वेदर द कनेक्टिविटी इज लाइव और नॉट। एंड यू कैन सी द कनेक्टिविटी इज लाइव, आई एम एबल टू पिंग दैट मशीन। अब कनेक्टिविटी लाइव हो गई है तो सेकंड काम जो है वो है कनेक्शन लेने का, मतलब आपको कंसोल भी लेना है यार, ठीक है। कंसोल कैसे लोगे? ये आपका इंस्टेंस लॉन्च्ड है, यहीं पर एक ऑप्शन आता है कनेक्ट का, कैन सेलेक्ट द कनेक्ट ऑप्शन हेयर, और यहीं से आप डायरेक्टली कनेक्ट क्लिक कर सकते हैं। यू विल बी एबल टू ओपन इट अप हेयर, ठीक है। ये डायरेक्टली आपको उसका कंसोल मिल गया है। ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू मैं कंसोल ले सकता हूं। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी मशीन पे वाया SSH क्लाइंट, ठीक है, आप अपनी मशीन से वाया यूजिंग एनी SSH क्लाइंट यू कैन लॉग इन इनटू द बॉक्स। अब उसके लिए बहुत तरीके होते हैं, कुछ लोग पुट्टी यूज करते हैं, कुछ एक्सटर्म्स यूज करते हैं, कुछ गिट बैश यूज करते हैं, एंड नंबर ऑफ थिंग्स, राइट। जनरली अगर आपको यूज करना है पुट्टी, ठीक है, तो सबसे पहले आपको 2 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ेंगे, पुट्टी और पुट्टी जेन, ठीक है। मेरी मशीन पे दोनों होंगे। अगर आप यहाँ चाहें तो इंटरनेट पे ऐसे सर्च कर सकते हैं, ठीक है, putty.org है, यू कैन क्लिक ऑन दिस, यू कैन डाउनलोड पुट्टी फ्रॉम हेयर, यू कैन क्लिक ऑन दिस, और इसमें आपको 2 विंडोज मिल जाएंगे। पैकेज नहीं डाउनलोड कीजिएगा, यू कैन डाउनलोड द इंडिविजुअल exe फाइल्स, ये रही putty.exe, और दूसरा आपके पास रहा पुट्टी जेन, ठीक है। ये दोनों फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको पुट्टी जेन खोलना पड़ेगा, यू विल ओपन अ पुट्टी जेन जनरेटर। यहाँ पर आपको लोड पे क्लिक करना है, ये स्टेप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको लोड पे क्लिक करना है, और you go to your download folders and I can select all files here, ठीक है। मैंने select all files, यहाँ पर बहुत सी फाइलें आ गई हैं, इसमें मेरा 38 अक्टूबर दिख गया है। You can select and open this file, वार्निंग देगा, ओके। इसके बाद आपको करना है सेव प्राइवेट की। आर यू श्योर यू वांट टू सेव? आई सेड यस। कहाँ सेव करनी है आप वो भी बता सकते हो, ठीक है। वेयर एग्जैक्टली डू यू वांट टू शेयर योर प्राइवेट कीज? अच्छा, यहाँ कर लेते हैं 38 अक्टूबर, सेव करेंगे इस की को, कुछ नहीं करना और, एंड बस उस विंडो को क्लोज कर देंगे, ठीक है। रिपीट, gen load, go to your download, all files, select your PEM file which you have downloaded, click on open, click on OK, save the private key, click on yes, give the location where you want to store the file, and ध्यान रखिएगा उस लोकेशन को बाद में, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, ये इंस्टेंस आपको रनिंग कंडीशन में दिख रहा है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका पब्लिक आईपी कॉपी कर सकते हैं, देन यू कैन ओपन अप पुट्टी। पुट्टी में होस्ट नेम में आप ये आईपी डालेंगे, ये रहा, ठीक है। होस्ट नेम में यू गोना पुट द आईपी,
कनेक्शन के अंदर ये SSH है, इसके सामने प्लस पे क्लिक करोगे और यहां पर इस ऑथ पे क्लिक करोगे। ऑथ के प्लस पे नहीं, ऑथ पे क्लिक करोगे, ब्राउज पे क्लिक करोगे, आप अपनी की ढूंढोगे जो आपकी की है, ये रही मेरी 38october.ppk है। You'll click on open, accept the warning, and the username which you have to put in here is EC2 user. And once you put it is EC2 user in here, you should be getting authenticated onto this. आप अपने सिस्टम में easily authenticate कर पाएंगे, जिसे आप कभी मेरी मशीन पे देख रहे हैं। Got it? Any question? Anything which you like to ask right now, guys? कुछ पूछना हो किस तरीके से? सर ये होने के बाद इसको मतलब फिर जैसे कुछ अलग अदर रिक्वायरमेंट आती है तो उसके हिसाब से इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अलग रिक्वायरमेंट जैसे कि बताइए। जैसे स्टोरेज में आपको बढ़ाना या हाँ, वो देखो, इसी की स्टोरेज नहीं बढ़ा सकते आप, एक्सटर्नल स्टोरेज लगा सकते हो। ठीक है, अगर मशीन में CPU रैम बढ़ाना है आपको तो हाँ, मशीन में ऑप्शन होता है, पहले मशीन को शट डाउन करो, ठीक है, और फिर इसमें एक्शन में जाके आपके पास एक ऑप्शन होता है जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इफ आई सेलेक्ट दिस वन राइट नाउ, ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन है अटैच इंस्टेंस टाइप। अभी नहीं कर सकता क्योंकि लाइव है मशीन, मुझे शट डाउन करना पड़ेगा, आई कैन अटैच इट। ठीक है, ओके सर। और सर जो कंसोल का जो हमने एक्सेस लिया वो सर CLI में आता है या फिर GUI में भी आता है? लिनक्स मशीन का CLI में आएगा ज्यादातर यार, विंडोज का GUI में आएगा। वही आप प्रैक्टिकल अभी करके देख सकते हैं, दैट्स द टाइम फॉर यू टू डू। ठीक है, अभी आप एक लिनक्स की मशीन और एक विंडोज की मशीन लॉन्च करके देखिए, ठीक है, एंड ट्राई टू कनेक्ट विद इट, सी इफ इन केस यू आर एबल टू डू। तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्लास आज खत्म हो गई है, अब इट्स प्रैक्टिस। यूजुअली फर्स्ट क्लासेस में प्रैक्टिस देना बनता भी है क्योंकि ये सबसे फंडामेंटल सर्विसेज हैं। ठीक है, आगे चल के जब आपके पास ये सारी चीजें हो जाएंगी तो आप पेस में चल सकते हो, बट अभी के लिए थ्योरी सेशन खत्म है आज का, इट्स ऑल ओवर एंड डन। फॉर दोज हु आर द रिपीटेटर्स इन द क्लास, इफ दे वांट टू स्टे दे कैन स्टे। फॉर दोज हु आर न्यू, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू मेक श्योर दैट यू कवर अप द प्रैक्टिकल ऑफ इट। एक बार ट्राई जरूर करके देखिए, एक विंडोज की मशीन लॉन्च कीजिए, एक लिनक्स की मशीन लॉन्च कीजिए। आई एम सिटिंग हियर, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू आस्क मी। ओके सर। करेक्ट? I'm gonna stop the recording, ठीक है, टॉपिक खत्म है तो रिकॉर्डिंग हम स्टॉप कर देते हैं। इसके बाद बस टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जो आप पूछ सकते हैं।